A very good morning, children. Let's continue lesson number 18, that is your transformation of active voice into passive voice. In today's video, I will explain you the transformation of interrogative sentence into passive voice. Okay. Interrogative beta yes no questions and WH questions. Let's start with yes no questions. It can be transformed or changed into passive by replacing do, does, did with auxiliary verbs like is, am, are, was, were at the beginning position of the sentence. Okay, we will have to replace this with auxiliary verbs. इसके लिए देखिए examples. Does my voice disturb you? इसको हम कैसे replace करेंगे? आर से. आर यू डिस्टर्ब्ड बाय माई वॉइस? नेक्स्ट एग्जाम्पल. डू यू नो सौरभ श्रीवास्तव? इज सौरभ श्रीवास्तव known to you? Clear? This is the way how we sentence structure is there. You can read it also. Next is your question starting with modal verbs like can, could, shall, should. जो भी है ये आपका changed by होगा कैसे? Changing the first form of the verb used under the modal verbs as third form of verb and adding be before it. First form का जो verb है उसे हम change करेंगे third form में and add करेंगे be before it. Examples देखिए बेटा. Will you buy both the shirts? Will both the shirts be आ गया आपका. ये first form से change हो गया third form में bought हो गया by you. Clear? Next is your students. आप यहाँ पे देखिए WH questions. WH questions, it can be transformed into passive voice by changing the first form of verb used after the WH word as third form of verb and adding be before it. Example देख लीजिए बेटा यहाँ पे who kills the wild animals. अब देखिए यहाँ पे by whom, by लगाकर यहाँ पे लिखा हुआ है रूल्स में by whom are the wild animals killed. Clear? When will the church bell ring? When will the church bell be rung? Both are here. Clear? Sentence structure में you can write with any of the two. Next is your students transformation of imperative sentence into passive voice. As you know imperative sentence बेटा हम लोग क्या करते हैं positive negative तो होगा आपका indirect command है और order starting with let है. फोर्थ है आपका request और proverbs और sayings कुछ कहावतें वगैरह हैं. पहले देखते हैं affirmative positive command or order. It can be changed into passive voice by adding let at the beginning position or placing should be or must be after the subject before the third form of verb. Clear? थर्ड फॉर्म के पहले और सब्जेक्ट के बाद में ये यूज कर सकते हैं हम लोग या तो लेट से शुरू कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखिए गिव द ऑर्डर फॉर 500 डायरीज. अब देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेट द ऑर्डर फॉर 500 डायरीज बी गिवन, या तो आप लिखिए ऑर्डर फॉर 500 डायरीज शुड और मस्ट बी गिवन. क्लियर? दोनों वे आपको यहाँ बताया गया है, आप कर सकते हैं. अदर एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो देयर स्टूडेंट्स, देख लीजिए. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस. Next is your negative command. It can be changed into passive voice by adding let at the beginning जैसे वहाँ पे था आपका and changing don't into not or placing shouldn't be or must not be after the subject before the third form. अब यहाँ पे भी third form पहले no not जो भी ये लगाना है आप लगाइएगा. क्लियर? एग्जाम्पल देखिए बेटा डोंट मेक द क्लास डर्टी पहले के वे में करेंगे तो लेट द क्लास नॉट बी मेड डर्टी. क्लियर? और दूसरे वे में इसके हिसाब से करेंगे तब आपका होगा द क्लास शुडंट और मस्ट नॉट बी मेड आपका थर्ड फॉर्म, डर्टी आपका ऑब्जेक्ट. क्लियर? ध्यान से अच्छे से सारे एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेंगे. अगर कोई डाउट हो बेटा आप हमसे पूछ सकते हैं ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस. थर्ड इज योर इनडायरेक्ट कमांड. क्लियर? इसे हम कैसे चेंज करते हैं बाई प्लेसिंग लेट विथ इट इज सजेस्टेड दैट. लेट की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे इट इज सजेस्टेड दैट at the beginning position of the sentence before the subject and be plus third form of verb. Clear? Look at the example students. Let us help him.
ये यहाँ पे क्या आ रहा है, इनडायरेक्ट कमांड दिया जा रहा है। जैसे डायरेक्ट नहीं कहा जा रहा है कि जाओ हेल्प करो उसकी, गो एंड हेल्प हिम, लेट अस हेल्प हिम, चलो उनकी उसकी मदद किया जाए, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट कमांड। इट इज सजेस्टेड, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, लेट के बदले में वी विल यूज इट इज सजेस्टेड दैट, क्लियर, ही बी हेल्प्ड, क्लियर। बी लगेगा प्लस रूल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखिए वर्ब्स का थर्ड फॉर्म। इसी तरह से लेट हिम डू द होल वर्क, इट इज सजेस्टेड दैट, ये हम लेट के बदले में लिखेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट द होल वर्क बी डन बाय हिम, ये दो यहाँ का यहाँ चला आता है, पहले ये लिखेंगे हम लोग बाय हिम, क्लियर। नेक्स्ट इज योर स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट आप देखिए, रिक्वेस्ट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू पैसिव वॉइस बाय रिप्लेसिंग प्लेस और प्लीज और काइंडली विथ यू आर रिक्वेस्टेड, अर्ज टू प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एट द बिगिनिंग पोजिशन ऑफ द सेंटेंस। ओके, लुक एट द एग्जाम्पल्स, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं बेटा, एक्टिव वॉइस में इस तरह से लिखा हुआ है, जब पैसिव आप करें स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यू आर रिक्वेस्टेड और अर्ज्ड मतलब रिक्वेस्ट करना। प्लीज डू नॉट शाउट एट मी, ओके, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, यू आर रिक्वेस्टेड या अर्ज्ड भी लिख सकते हैं हम, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू शाउट एट मी, क्लियर। Kindly help the flood victims. You are requested to help the flood victims. Last point is your proverbs or sayings, कहावतें. If the active voice states any universal truth, means जो चीज़ हमेशा सच है, like the sun rises in the east, sun sets in the west. This is your universal truth. Clear? Proverbs or scientific fact that were कूलिंग करने पे जो लिक्विड चीज़ होती हैं वो आपका जैसे पानी है वो जम जाता है, यानी साइंटिफिक फैक्ट। देन इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड और चेंज इनटू पैसिव वॉइस बाय एडिंग इट इज सेड दैट, यहाँ हम क्या ऐड करेंगे, इट इज सेड दैट एट द बिगनिंग पोजिशन ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि ये चीज़ें जो यहाँ बताई गई हैं, प्रोवर्ब्स हों, कहावतें हों, ये सारी चीज़ें हमेशा हम सच मानते हैं। इट इज़ सेड दैट, कहा गया है, ऐसे कहते हैं लोग, ऐसे कहा गया है, ठीक है, इसीलिए ये वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए बेटा, यहाँ पे एल्डर्स से डैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए कहावत भी है ये, और ये कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं, इट इज़ सेड डैट, क्लियर, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्लियर। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, जहाँ चाह है वहीं राह है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, जैसे यहाँ आप देखिए इट इज़ सेड डैट, वो हम ऐड करेंगे, क्लियर। आई होप these things are clear to all of you. And students, if you have any query, any problem, you can ask me anytime during teaching online classes, clear, कोई doubts हो आप clear कर लीजिएगा। exercises are very easy students, it's written beside, सारा आपको करना है, आप इसको कर लीजिएगा, clear, this will be your homework, fourth one, clear, last one is your homework, okay. So I hope this is clear to all of you. Thank you students. Have a nice day.